دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں. جو ہمارے دوست پنجاب سے تشریف لے آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بلوچستان سے جو تشریف لے آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور جو نور سندھ سے تشریف لے آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا سہرا جناب محترم خادم حسین دھرپالی صاحب نے ایک عظیم و شان کنونشن کروایا ہے ماشاءاللہ کراچی میں. ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ایسے لوگ خادم حسین دھرپالی صاحب جیسے لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ جٹ قوم کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پوری جٹ برادری ان کے ساتھ ہے, جٹ قوم ان کے ساتھ ہے. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں دعوت دوں گا جناب خادم حسین دھرپالی صاحب کو وہ آئیں اور اپنی تنظیم کا منشور جو ہے وہ بتائیں. خادم حسین دھرپالی صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں شیر بلوچستان مرد کلندر جناب خادم حسین دھرپالی صاحب. پورے ملک سے آئے ہوئے چار بھائیوں بزرگوں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. میں بنیادی طور پہ سیاسی ورکر ہوں. کافی لوگ جانتے ہیں کافی جو ہے ان سے نیا تعارف ہوا ہے. 40 سالہ سیاسی اسٹرگل کیے انسانی حقوق کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر. مجھ پر پہلا مقدمہ 1983 1 جنوری کو درج ہوا اور ان مقدمات کی تعداد کوئی 40 تک ہے جو میں نے عدالتوں میں پیش ہو کر اور عدالتوں سے انصاف ملا. کبھی جھکے نہیں, کبھی جھکے نہیں. تو اس سارے عمل میں مختلف جماعتوں میں بھی رہنے کا موقع ملا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ محسوس کیا میں نے, ہر جگہ پہ محسوس کیا کہ جہاں پر بھی جاٹ ہے اس کو استعمال کیا گیا. اس قوم کو جو اس دھرتی کی وارث ہے, دھرتی جس کی سکی ماں ہے, جاٹ جس کا سگا بیٹا ہے, گھر کے مالک کو نوکروں کی طرح رکھا گیا. سماجی ناانصافی, سماجی نابرابری, احساس بیرونی نے میرے دل میں ایک تڑپ پیدا کی کہ کیوں نہ میں ایک کوشش کر کے دیکھوں, کوشش کروں, شاید وہ میری کوشش کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. وہ وعدہ خلاف نہیں ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی میری طرح وعدہ خلاف نہ بنے. تو اس نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گا. ابھی اللہ کا وعدہ ہے, جو قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنا نہ چاہے, باتوں سے, محفلوں سے ہماری حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرط لگائی کہ آپ اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے محنت کرو گے, کوشش کرو گے, جدوجہد کرو گے. تو میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ کی نیت واقعی جو مقصد آپ لے کے چلے ہو
जो बात आप मेरी मखलूक को बता रहे हो, अगर वाकई आप मुखलिस हो, सच्चे हो, तो मैं अल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुँचाऊंगा, लेकिन शर्त मेहनत है। इस सारे अमल को देखते हुए मुझे 1 मार्च 2019 को बैठे बैठे ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना जट्टों की एक कौमी सतह पर तहरीक बनाई जाए पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद एक कानून है, जमहूरी कानून है, अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा है कि पूरी दुनिया में जो भी जात कौम रहती है बस उनकी ऑर्गेनाइजेशन असेंबली में बने तहरीक के नाम। तो मैंने सोचा कि अभी जाट के अंदर तब्दीली लानी है। क्या करना है? जाट के अंदर तब्दीली लानी है, इनकलाब लाना है। तो मैंने इसका नाम तजवीज़ किया अपने जहन से कि इस तहरीक का नाम तहरीक इनकलाब जट होना चाहिए। जट जाट जामोर ये एक ही नस्ल के नाम। तो मैंने जो मंशूर अगराज और मकासद लिखे, खुद लिखे, वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जनाब फिरोज खान साहब माशाल्लाह, पटका भी जो है ना इन्होंने पगड़ जो बांधा हुआ है ये भी जट्टू वाला बांधा हुआ है। मैं इनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ जनाब। ये पहलवानों का शहर के है, ये जो गुजरा वाला शहर है ना ये सारा हमारा जाट बिरादरी का है, जाटू का शहर है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पूरी जट बरादरी को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई है कि साडे सिंध दे विच भी बड़े जट हैं। अभी तो यही समझना पंजाब ही चले अं नस नस के जब चले हाँ, किसी होर इलाके सानू जट नजर नहीं आता। अज बड़ी खुशी हुई है इस कराची शहर सिटी के इस प्रोग्राम का इवेंट किया अपना खादम साहब ने। मालिक रानी के इन्ना अभी पंजाब से प्रोग्राम करके खुश नहीं हुए जिन्हें इस जगह मुझे खुश होया। अभी तो यही समझते रहे अज तक कि जेडे फेमस शरीफ वाली चादर वाले ने या टोपियां सुंधी पाने वाले ने ये सारे सुंधी ने, लेकिन थोड़ी पहचान जगन जी कराई है वो फादर साहब ने कराया कि इस पगड़ियों के इस टोपियों के जट भी गुम ने। और साढ़े पंजाब की रिवायत है कि जो पगड़ी बंद है पंजाब के वो जट है। लेकिन अज खुशी बड़ी महसूस हो रही है कि सब अभी जट भाई साडा कबीला बहुत बड़ा है, बल्कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया के एक कबीला है जटां दा। ते अल्लाह की कसम कर कहना इंतहाई खुशी हुई है। और मैं इस तरीके इनकलाब जटां दा इंतहाई मशहूर हाँ, और जेड़े जेड़े इस प्रोग्राम के आए वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ। ये बड़िया बड़िया पुरानिया हस्तियां बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने भी अस बड़े मशहूर हाँ। और मैं खास तौर पर जेडे अस लीड कर रहे हैं पंजाब तो साड़ी जट फेडरेशन इंटरनेशनल अज तो 12-13 साल तो काम कर रही है। लेकिन जी सूरत हाल इस खादम साहब के अंदर कल मैं मीटिंग की वो इंतहाई मुखलस है। वो अपना एक ईमान लैके अपनी जट फेडरेशन के नाम अपनी जट इनकलाबे जगह के नाम चल रहे हैं और साडा तुहानू साथ देना चाहिए। और जिस वक्त इंशाअल्लाह खादम साहब पंजाब के किसी हिस्से शहर जाएंगे और इस तरह इनकलाब पूरा जटा का उधरों इकट्ठा करके इन्होंने नाम चलाएंगे। और जज कौन के लिए वो वफादार है, वफा करती है, उन्होंने
साढ़े पहले बजुर्ग जो होंगे सन उन्होंने पैसे का कोई नहीं होगा, उन्होंने इज्जत के भाईवाल होंगे सन। और सानू लालच नहीं होना चाहिए, अं एक दूसरे की इज्जत के भाईवाल होइए। किसी जगह पर जाके मजबूर बैठा है या बेबात है, सानू मदद करनी चाहिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो उस बंदे को सहारा इस किस्म का दईए कि वो थोड़ा थोड़ा सारे नाल वैसे ही चले। एक सब तो बड़ी इस तारीख का आगाज जड़ा होया है कराची तो, वो सारे वास्ते एक बड़ा बड़ा फखर है। और इंशाअल्लाह ये कराची च नहीं रहेगा, पूरे पाकिस्तान के सब साथ मिलकर चलांगे। और इन जटा की जो खिदमत अं दूसरे भी करा तो फिर दूसरे बराबर भी करा। अं सारे इकट्ठे जब हो जाए तो साडा हर उहदे दौरान जिहड़े बड़े बड़े लीडर ने वो साडी भी इज्जत करेंगे, क्योंकि साढ़े से इतफाक होएगा। इतफाक की बरकत है। और अपनी सब तो बड़ी जी मेन जटानी कमजोरी वो हुई है कि साढ़े ही छोटे घरों के साढ़े जमीन सन, साढ़े बच्चों ने एजुकेशन नहीं की। उसकी वजह तो आके अभी थोड़ा जहा पिछे आए हैं। और प्लीज जिन्हें भी अभी दोस्त साढ़े जो बच्चे ने उन्होंने अच्छी तो अच्छी तरबियत करिए, उन्होंने एजुकेशन करिए, क्योंकि पढ़िया लिखा बच्चा जोड़ा वो मुल्क का बादशाह भी बन सकता है। जाहल बच्चा बिल्कुल वर्कशापा में जा सकता है, बादशाह नहीं बन सकता। अज का दौर है कि पढ़ लिख के बच्चों को पढ़ाइए और उन्होंने एजुकेशन अच्छी दईए, ताकि वो कल साडा ही सरमाया बनेंगे। और अगर कोई बंदा बच्चा देख दो कि अच्छा एजुकेशन कर रहा है, अपने गली महल्ले के भी हेल्प करो, ताकि वो अगे आन के कल सारी खिदमत करेगा। कितने आसान करिए और आसान प्रमोट नहीं होगा। और इस तरह मैं पूरी अपने जट फेडरेशन की तरफों मैं क्यादत कर रहा और अपनी तंजीम इनकलाबे जटा के नाल अभी एक हिस्सा वा, जिस जगह किसी टाइम भी इनकलाबे जटा को जरूरत पए जट फेडरेशन के सारे उसके दौरान इंशाअल्लाह तुहाडे नाल खड़े होंगे। ये थे जनाब चौधरी जावेद जट साहब गुजरावाला से, पहलवानों के शायर से जनाब शौकत जट साहब। मोहतरम जफरी साहब, डॉक्टर साहब और इस पंडाल में आए दूर दूर से चारों सूबों से हमारे प्यारे खूबसूरत चेहरों के साथ हमारे भाई जट बरादरी, जाट और जामोद तमाम दोस्तों को अस्सलाम। दोस्तों, ये जफरी साहब ने जो आज काम शुरू किया है, ये इंतहाई बहुत मुश्किल काम है। और ये काम जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तहरीक पाकिस्तान में पहली मरतबा ये उठ रही है और ये इंशाअल्लाह जट और बरादरी को एक उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ पर जाट जो थे वो हजारों साल से इस धरती के लोग हैं, बासिंदे हैं, जिम्मेदार हैं। आज कमी जो है वो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और जाट जो है वो पीछे रहे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हम वहाँ पे अपने इलाके में छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। आज से मैं बाकायदा तौर पर उस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके के साथ इल्हाक करता हूँ और बाकायदा जम करने के लिए हम आज से छाना में छाना सरकारी साहब के साथ हैं। और सरकारी साहब ये खादम है, खादम से लेकर जनरल तक हम हैं। लेकिन कुछ खामियां, कुछ कोताहियां थी जो हम इन जाटों को इकट्ठा नहीं कर सके, जो इनका फेरा आज जो है सरकारी साहब ने अपने सर लिया है। और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे और कामरान होंगे।
हम इनके साथ हैं, आज भी कल भी। हम इनको अपने इनके पाँव के नीचे हम हाथ रखेंगे और इनको अपने कंधों पर बैठाएंगे और ये ताज जो है ये इनके चेहरे पर। थैंक यू। ये थे जग ताज में दम की है, हम इनके बेहद मशहूर हैं। इंशाअल्लाह और ताला सब दोस्त मिलकर काम करेंगे फलाई खिदमत का इंशाअल्लाह। जनाब हमारे आज के जो रोल था वो सनसनवाड़ों में था। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ महाराजा सूरजमल, उसने फिर एक रियासत कायम की लोहागढ़, और उस रियासत के उस महाराजा को अंग्रेज़ ने भी उस वक्त फतह किया जब तमाम रियासतों को फतह कर लिया। हमारे बाद वो रंजीत सिंह के बेटे की तरफ गया था। अगर वो पहले वहाँ जाता तो लोहागढ़ के जो जाट है ना, हमारी बोली वाले, वो ला मोहल्ला उसके साथ खड़े हो जाते। अब राजपूतों का मारवाड़ था, वहाँ झगड़ा हुआ, राजा की दोस्ती थी सूरजमल के साथ, तो गद्दी की लड़ाई हो गई। सारे राजपूत राजा इकट्ठे हो गए वहाँ उस बेटे के खिलाफ। तो उसने खत भेज दिया सूरजमल को कि मेरे बाप ने तेरे सामने मुझे राजा घोषित कर दिया था, अब ये मुझसे छीन रहे हैं। तो उस वक्त सूरजमल जो है अपने 17,000 सैनिक लेकर, फौजी सिपाही लेकर उस वक्त वो गया और उसने अणरीति का रुख मोड़ दिया, यानी कि अनहोनी कर दी। वो बाहर जो घेरा देकर बैठे थे, हथियार घेरने के लिए तैयार था अंदर से राजा, उसको राजधानी दिला दी, उससे हिस्सा नहीं मांगा किसी किस्म का भी। हमें लुटेरे कहते, माजी में भी हाल में भी जाट लुटेरे थे। हमारी फौजें तनख्वाहों पर नहीं होती थी, आगमन हमले करके वहाँ से जो माले गनीमत होता था उस पर गुजारा करती थी। फिर वहाँ से बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठे हुए दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली ख्वाब रहा मराठों का भी, गोरखों का भी, दिल्ली पे हम कब्ज़ा कर लें, फतह कर लें, नहीं कर सके। महाराजा सूरजमल का साथ लिया तो दिल्ली फतह हुई। जब दिल्ली फतह हुई तो हमारा एक क्लेम आया कि भाई ये दिल्ली जो है वो जाटों को दे दें। तो उन्होंने कहा जी हम अब्दाली साहब से फारग हो लें फिर आपको दिल्ली दे देंगे। हमने कहा कि नहीं, दिल्ली हमें दे दें, हम आपका साथ देते हैं, अब्दाली साहब के ख़िलाफ़ हम आपका जंग में साथ दे देंगे। इस बात पे भावराव नहीं माने। वो वहाँ 2.5 लाख बंदे अपने मरवा के और नाकाम वापस लौटे। और एंड ये हुआ, उनकी जो अश्तरिया औरतें थी ना, महाराजा सूरजमल ने ज़ाती खर्च पे मारवाड़ पहुँचाई। जब तक वो वहाँ रहे उस ज़माने का 1 रुपया और खाना डेली महाराजा सूरजमल अपने ख़जाने से देता था उनको। उस ज़माने में उस वक्त तक दिया जब तक उनको वापस नहीं पहुँचा दिया, थोड़े थोड़े करके। फिर एक वक्त आया कि दिल्ली के साथ झगड़ा हुआ और दिल्ली भी जाटों ने फतह कर ली, जिसमें अक्सर लोग हमारे बच्चे हैं, इनको नहीं पता। वो एक गाना बनाते थे पंजाबी में, अपना दिन में दीवा बाढ़ के जाटा ने दिल्ली लूटी। वो इसलिए हमें कहते हैं कि भाई इन्होंने दिल्ली लूट ली। एक दफ़ा हमने लूटी राजस्थान और अपना क्या नाम है यूपी के और हरियाणा के जाटों ने, और एक दफ़ा अपना क्या नाम रंजीत सिंह के सिख जाटों ने लूटी। और उन्होंने हुकूमत भी नहीं करी, वो दे के उसको वापस चले गए थे। सिर्फ ये उसके कोई एक एजुटेशन हो गई थी किसी बात के ऊपर, जैसे अब वहाँ किसानों का चल रहा है वो इंडिया में मसला, फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर दी। इसी तरह फिर आगे चल के ना वक्त गुजर गया बड़ी तेज़ी के साथ। उस वक्त के लोगों ने देखा कि भाई ये जाट हैं, इनके मुंह को ये खून लग गया इक़्तिदार का, ये पता नहीं अब आगे जाके क्या करेंगे। हमारे ख़िलाफ़ शाट से ज़माने से होती आई, होती रही, होती है आज भी। तो उन्होंने फिर हमें अंग्रेज़ आया, ग़ुलामी की तरफ ले गए। जब हमें ग़ुलामी की तरफ ले गए तो फिर अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, उनके धर्म के अंदर ईश्वर है, भगवान है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो एक घर में सर छोटू राम जाट पैदा हो गया और उसके पास, उसके बाप के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, सिर्फ 2 एकड़। बच्चा बहुत लायक था। उसने कहा अब्बा मुझे जो है ना मिशन स्कूल में दाखिल कराओ, प्राइमरी दिल्ली। अब वहाँ तो वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे।
वो बनिया किराड़ के पास चले गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोहतक के वो थे। जब वहाँ गए वो बानियों को कहा मेरी ज़मीन रख ले यार, ये मैंने ना भाई क्या करेगा तो इसका पैसे का भाई छोरा मैंने स्कूल में दाखिल कराना दिल्ली, मिशन चढ़ कैद आज़म भी पढ़े हैं, मिस्टर जिन्ना भी वहीं पढ़े हैं, और जहाँ से लॉ की डिग्री उन्होंने ली है वहाँ सर छोटू राम जाट प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, तो वो बानिया बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार ये जाट और ये ठाठ मेरी समझ से बाहर बात है। उसने बजाय कर्ज देने के ना उसके मुंह पे थूक दिया, उसके बाप के यानी छोटू राम के बाप के मुंह पे थूक दिया कि यार ये इंटरव्यू मैंने पढ़ा आपका, देखा है और मैं हैरान हुआ आप पे। कहता मैं खुद गया हूँ इराक के अंदर सद्दाम के पास डेलीगेशन के साथ। तो डेलीगेशन जब बैठ गया, मीटिंग हुई हमारी, मैं इंडिया की तरफ से मिनिस्टर था सीनियर, तो मुझसे उसने पूछा भी आप यूर कास्ट, आपकी कौम क्या है? मैंने कहा जी मैं जाट हूँ, ऐसे ऐसे। तो सबको उसने कहा भी तुम अपने अपने होटलों में कमरों में जाओ, ये मेरा भाई है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, लेकिन ये मेरा खून का भाई है, धर्म से अलहदा है। वो मुझे अपने ज़ाती महल में ले गया और उसने मुझे महल में रखा, मेरी खिदमत की, सगे भाइयों की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। तो मैंने कहा जी वो क्यों किया? उसने कहता जी वो खोखर जाट था। उसने शाम की पहाड़ियों से लेकर ये हिजरत करते करते ये जब तक कबीला जाटों का बिलोचों में है, फिर सोमरो आ गया, 200 साल हुकूमत की है सिंध पे सोमरो जाटों ने, 200 साल हुकूमत। ये गोलान जोलान से लेकर ये जितना भी तुर्की और इस पूरे इसके अंदर जो है ना जलाल तालबानी और ये कुर्द कहते हैं उनको, जाट कुर्द जो है वो सारे जाट है। इंटरव्यू मैंने पढ़ा आपका, देखा है और मैं हैरान हुआ आप पे। कहता मैं खुद गया हूँ इराक के अंदर सद्दाम के पास डेलीगेशन के साथ। तो डेलीगेशन जब बैठ गया, मीटिंग हुई हमारी, मैं इंडिया की तरफ से मिनिस्टर था सीनियर, तो मुझसे उसने पूछा भी आप यूर कास्ट, आपकी कौम क्या है? मैंने कहा जी मैं जाट हूँ, ऐसे ऐसे। तो सबको उसने कहा भी तुम अपने अपने होटलों में कमरों में जाओ, ये मेरा भाई है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, लेकिन ये मेरा खून का भाई है, धर्म से अलहदा है। वो मुझे अपने ज़ाती महल में ले गया और उसने मुझे महल में रखा, मेरी खिदमत की, सगे भाइयों की तरह मेरे साथ व्यवहार किया। तो मैंने कहा जी वो क्यों किया? उसने कहता जी वो खोखर जाट था। उसने फिर अपनी हिस्ट्री बताई। तिकरत शहर में मैं यानी कि मैं बकरियाँ चराता था, मेरा बाप फौत हो गया था, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, सारा उसने हिस्ट्री बताई। तो शाम की पहाड़ियों से लेकर ये हिजरत करते करते ये जब तक कबीला जाटों का बिलोचों में है, फिर सोमरो आ गया, 200 साल हुकूमत की है सिंध पे सोमरो जाटों ने, 200 साल हुकूमत। ये गोलान जोलान से लेकर ये जितना भी तुर्की और इस पूरे इसके अंदर जो है ना जलाल तालबानी और ये कुर्द कहते हैं उनको, जाट कुर्द जो है वो सारे जाट है। इसी तरह जैसे तुम हमारी औरतें रोटियां लेके जाती हैं ना, खेत में जाया करती हैं, अब जरा कम हो गई है, वो इसी तरह उनकी रोटियां लेके जाती हैं। वो इस सिस्टम, हालांकि दुनिया कितनी बदल गई है आज। तो मकसद कहने का ये है कि हम पाकिस्तान जब आए ना, हालात ने मजबूर किया, मेरे से भी ये फ़ोन पे करते हैं यार आप पाकिस्तान चले गए। मैंने कभी बात ये है कि तुमने रखा ही नहीं, तुम रास्ते हम आते हैं ना। हमने तो उस हरियाणे को जंगल टिब्बा रेत को पदरा करके 4 नस्लें अपनी गड़ा दी और उसको फिर ठीक किया। जब ठीक करके खान पीने का टाइम आया, हम मुसलमान हो गए, तब हिंदू बन गए, हमें तुमने भजा दिया, हम आ गए। लेकिन हम अब जाट हैं, जाट से तो इनकार नहीं कर सकते ना। तो वो मुझे कहने लगा यार बस अब क्या बताएं। मैंने कहा जी बहरहाल जो भी कुछ है, अब यहाँ जो सूरत हाल है ना अल्लाह ने हमें नस्ल में कमी दी है, ना हमें भाइयों में कमी दी है, किसी चीज़ में कमी नहीं दी है। हमें तो सिर्फ कमी एक चीज़ की है
कि हम अपने आप को पहचानने से कासिर हैं। जब भी हमने पहचाना है, हमने अब्दाली को भी रोक लिया, हमने 17 हमले, सुल्तान महमूद बीएन मुस्लिम मैं उसको अपना जर्नैल मानता हूँ, लेकिन कौम की जब बात आती है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 17 हमले हमने बर्दाश्त किए, एक दफ़ा आ रहे हैं, एक दफ़ा। तो मुझसे किसी ने पूछा यार आप किस कौम के हो, मैंने कहा छोड़ो यार, कह रहा नहीं बताओ यार किस कौम का है तो। मैंने कहा 1700 की किताब मिलती है सलाहुद्दीन अब इसकी अपना महमूद गजनवी सुल्तान की, हम 16 दफ़ा हार गए, जीत गए 16 दफ़ा, एक दफ़ा हार गए, बस वो हिस्ट्री हमारी पढ़ लेना। तो बात ये है कि हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो इर्द गिर्द का जो बिरादरी है, कौम है, हमारे बच्चे हैं, आई समझ में। वहाँ इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ जाट पार्लियामेंट इंटरनेशनल, पूरी दुनिया से वहाँ लोग आए, पूरी दुनिया से 40 मुल्कों से आए, 40 मुल्कों से, यानी दावत नामे पे ना, पाकिस्तान के अलावा। तो सर छोटू राम जाट का जो देवता था ना, उसने उठ के कहा अरे को पाकिस्तान से भी आया है? अगर नहीं जी पाकिस्तान से नहीं आया। उसने कहा फिर क्या आया? जब दुनिया था तब ने इकट्ठे कर लिए और पाकिस्तान से जाट नहीं आया, तो फिर क्या इकट्ठे करे तुम उनको भी देखो बुला लेते। ये जाट पार्लियामेंट सभा हुई बहुत बड़ी, फिर उसके बाद इंग्लैंड हुई, मुझे भी बुलाया, लेकिन वो कोरोना की वजह से मैं नहीं जा सका। तो बात ये है कि कम अज़ कम हम तो एक दूसरे को पहचान लेना, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या ज़रूरियात है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा इत्तेहाद कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अब पिछली गवर्नमेंट गई है, मैं किसी पे क्लेम नहीं करूँगा, किसी पे, यानी कोई भी MNA MPA कहीं का उससे क्लेम मेरा बनता भी नहीं। मेरी तो बिरादरी का एक था राय मनसब, और हमने बड़े अरसे कोशिश की, फिर एक ऐसा धक्का लगाया, मेरे याद आज भी वो लफ्ज़ मुझे कहता है कि बरवाड़े को बरवाड़ा होगा उधर गांव इंडिया में, कर बरवाड़े के सैयद का बैल गुम हो गया, तो वो कहने लगा यार बैल नहीं मिल रहा, तो मैं कोशिश में लाग रहा हूँ। वो कह रहा भाई आगे के कोशिश का सींग है इत्या जगदा इत्या तो जा, बाकी फिर बैल ले लेंगे। तो ने बोले एक बन जा, फिर जगह बना लेंगे। तो जगह भी बन गई भाई, 7-7 हज़ार नौकरियाँ, 6,500 हज़ार मेरे आगे आई। मैं एक दिन हंस के बोलिया मगर आए साहब क्या हो गया, बिरादरी का कोई जो है ना कोई अच्छा बड़ा सोचो। तो मकसद कहने का ये है कि ये सियासत से हटके हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम तो अपनी शनाख्त भी खो गए। मैं कई दफ़ा किसी ने कहा ना मूला जाट वो गए, मूला जाट भी को कौम हो गए। अब ये तो जाकर पूछा कोई अंग्रेज़ थे, या तो पूछा जाकर कि अपना लाहौर के दिल्ली के किले के दौरे दीवार था, आवाज़ देकर पूछा भी जाट भी रहे हैं, वो बतावे, वो ईंट बताएंगे कि जाट रहते हैं इस खित्ते के अंदर। आई समझ में? उन दर दीवारों जिनको महाराजा सूरजमल ने जाकर दिल्ली को घेर कर बैठ गया और उस वक्त उठा, उसको बुला कर अंदर शहीद कर दिया, अंदर बुला कर चक्कर से शहीद कर दिया। उसका बेटा था जौहर सिंह। जब उसने इतला दी ना माँ को, उसने कहा मैं चूड़ी नहीं तोड़ूंगी, हिंदू धर्म में थी, दिल्ली गिरजा का चूड़ी तोड़ूंगी, दिल्ली फतह किया तो चूड़ी तोड़ी। तो बात यह है कि हमने अपने आप को, हमारी पहचान ख़त्म हो गई, अब हमने पहचानना है, एक दूसरे का साथ देना। इन्होंने एक प्रोग्राम ये शुरू किया है, आपसे एक मेहरबानी के साथ गुजारिश है कि एक दफ़ा जो है ना इकट्ठे होकर दिखाओ। मैं ये नहीं कहता कोई सियासी मकासद लेके, अपनी औलाद के लिए, अपने इस बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए करके देखो यार। हमने पता तो होना कौन किस जगह किस हालत में, कोई कमज़ोर है उसने ऊपर उठा दो मिलजुल के, किसी का बेटा अगर CSS के काबिल है उसने मिलकर CSS करा दो, को बाहर पढ़ सके तो मिलकर करा दो। जैसे हरियाणा के अंदर 99% तालीम है, 99%। तो इसलिए हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है, ये प्रोग्राम के भाई हमने कुछ ना कुछ करना है। तो ये बस मेरी यही गुजारिश है, ये जो टूटे फड़के मैंने बताई आपको सही लगी हो तो यही मेरी गुजारिश है, मिल बैठ कर ना कोई अगला लाहे अमल इख्तियार करें। बाकी मेरा सबको सलाम हो गया, कोई अच्छी बुरी हो तो उसको माफ़ कर दें।